In the application of group theory, you can say X, Y, Z represent translation mode of vibration, Rx, Ry, Rz represent rotational component, and see higher activity is checked from XYZ component, that is change in dipole moment component, and Raman activity can be checked by change in polarizability component. So these things we have discussed in the morning lectures. So see this Z represent, again see this Z represent s orbitals, and x square plus y square. Z represent both the orbital s and pz, both orbital, okay? And x square plus y square and z square represent dz square orbital. Here x minus y square represent d orbitals, and xy represent dxy. This is x and y are px and py. Actually, see this is x square plus y square represent s orbital, and z represent pz orbital. Okay, so दोनों को साथ में दिया है इसलिए. So these are the various orbitals. Rx, Ry, Rz are the translation component. Now see in this character table, one more thing is required to mention here is whatever this is a character table for C2V point group. So I write down here C2V point group. These are the Mulliken term, or you can say irreducible representation. Or you can say Mulliken term, and whatever symbol written here, this represents symmetry element. Now the coefficient of symmetry element, and here coefficient of E is 1, coefficient of C4 is, this is actually for tetrahedral point group. C4, sorry, it may be for any other point group. I think C4V point group. Here it is written C4V point group. So here the coefficient of C2 is 1, coefficient of sigma V is 2, coefficient of sigma D is 2. So this summation of coefficient, whatever coefficient written here, see summation of coefficients will give you group number. This is called order of group. Order of group, that is 1 plus 2 plus 1 plus 2 plus 2. The summation become 8. So this represent order of group. Another very important term is class. Number of classes checked from this. Number of irreducible representation equal to number of class. यहाँ पे कितने representation है? A1, A2, B1, B2 and E. So there are 5 representation. So number of class is equal to 5. Okay, आपको number of class calculate करना है. So simply go for from number of irreducible representation. So you will get the class. Now see 5 important points are there. 5 important points. Points of great orthogonality theorem. उसको वेरीफाई करते हैं. 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको आपको अच्छी तरह से समझना है. What are these 5 points? Which information you are getting from that 5 points? So among them, the first one is, the first point is number of irreducible representation. Number of irreducible representation equal to number of irreducible representation is equal to number of classes. Number of class. चलो इस केस में C3V का कैरेक्टर टेबल यहाँ प्रोवाइड किया है आपको. So now you tell me how many classes are there? There are 3 irreducible representation. Good. So number of classes are 3. There are 3 classes. This represents the number of classes. Now the second important point is, that is nothing but a definition of order of group. The square of sum of square of dimension of each irreducible representation
is equal to order of group. H. H is equal to sum of the square of dimension, Li square. Sum of the square of the dimension is equal to order of group H. फॉर एग्जाम्पल सी यहाँ जितने भी रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है, सारे रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन 3 रिप्रेजेंटेशन है, तो उनका जो डायमेंशन है इसका स्क्वायर करो एंड देन एड इट, so you'll get order of group. Check it. 1 square plus 1 square plus 2 square is equal to 4. ये रिड्यूसिबल है, ये रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है, बट ये तीनों जो है वो इरेड्यूसिबल है. So 1 square plus 1 square plus 2 square is equal to 4. बोलिए सर 2 स्क्वायर तो 4 और ये प्लस 2 sorry मतलब 6. Summation is 6. Okay. Order of group is 6. ये जो है ना वो 1 plus 1 plus 4 that is 6 आ जाएगा. This is 6. Character table is provided to you, so it is 6. Now, so look at here. Already I have told that sum of the coefficient of each class is equal to order of group. Sum of coefficient of each class is equal to order of group. This is second definition. Okay, in order to define order of group, so sum of the coefficient of each class. सर 1 plus 2 plus 3. Yes, so it is again nothing but 1 plus 2 plus 3. This is the coefficient 1, here 1 plus 2 plus 3. So this is also equal to 6. See, both are same. Okay, both are the same. So this is 6. Now, fourth very important rule is, fourth one is, at least see one representation should be such, at least one irreducible representation should be such that it's all the entry are unity. एक रिप्रेजेंटेशन ऐसा होना चाहिए कि जिसके सारी एंट्री पॉजिटिव नंबर हो, यूनिटी हो. दैट इज हियर इन केस ऑफ C3V विच रिप्रेजेंटेशन इज देयर, A1. आप A1 की सारी एंट्री देखो, सी दिस इज यूनिटी. So at least one representation you required such that all the entry become unity. Look at here, see this is 1. Okay, so all the entry of A1 is unity. And last one is any two representation in a given character table, any two irreducible representation are orthogonal to each other. कोई भी दो रिप्रेजेंटेशन है, फॉर एग्जांपल कैरेक्टर ऑफ एनी टू I and J, साई J है, ये ऑर्थोगोनल है. इसका मीनिंग ये है कि इनका जो आंसर है आप कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करके इनका समेशन करोगे, सो इट बिकम 0. तो दिस इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल. आप कोई भी दो चेक कर लो, सपोज आपको A1 और A2 चेक करना है, तो कैसे करेंगे? A1 एंड A2 आपको अगर चेक करना है तो आप ऐसे चेक कर सकोगे, A1 into A2 is equal to A1
यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 है, a2 भी 1 है, और यहाँ n मीन्स इसका कोएफिशिएंट a साथ में लेना है, दैट इज 1 into 1 into 1 plus 1 1 2, then minus 1 1 3, minus 1 1 3, तो ये -3 हो जाएगा. So answer become +3 and -3, that is nothing but 0. 1 plus 2 minus 3 is equal to 0 आएगा. कोई भी दो रिप्रेजेंटेशन है वो एक दूसरे को ऑर्थोगोनल रहेगी. A1 and A2 are orthogonal. So character table is given. You can see, you can predict these 5 important rules. And why this is very important? Because this is very important, because sometimes some missing character is there, then you can predict it. कोई कैरेक्टर अगर आपको सपोज मिसिंग है, यहाँ पे आपको प्रोवाइड नहीं किया है, सो यू कैन सी प्रेडिक्ट दैट. फॉर एग्जांपल P3V character table is given. Question just like that. Here it's a E, then 2C3 and 3 sigma V. Now in this case there are 3 representations, A1, A2 and E. Suppose here this entry is missing, X is given. Here suppose Y is missing. Here Z is missing. Okay, so question is asked like that. Can find out X, Y and Z. Find X, Y and Z. कैसे कैलकुलेट करोगे, पहले आप बताओ. चलो 1 by 1. X कैसे मिलेगा? सर दो इक्वेशन, अगर हम x तो वैसे 1 होगा क्योंकि एक भी कोई मतलब कोई one एक होना चाहिए. या 3 रिप्रेजेंटेशन है, सो एटलीस्ट 1 रिप्रेजेंटेशन शुड बी सच दैट इट्स ऑल द एंट्री आर यूनिटी. तो यहाँ पे 1 ले सकते हो, क्योंकि यहाँ -1 आ गया, यहाँ -1 है, तो ये अभी पॉसिबल नहीं कि सारी एंट्री यूनिटी कर दे. यहाँ पे भी पॉसिबल नहीं है. तो डेफिनेटली जो x है, x इज इक्वल टू 1, तो आप यहाँ पे 1 रख दो, x की जगह 1. उसके बाद क्या कैलकुलेट करोगे? ऑर्थोगोनल वाली प्रॉपर्टी ऑर्थो भी मिल जाएगा आपको. ऑर्थोगोनल वाला चूज करो. सो से यहाँ पे ये दोनों सपोज ऑर्थोगोनल है, दे आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, तो आपको Z मिल जाएगा. इसी तरह सी A1 एंड A2 आर ऑर्थोगोनल. सो 1 into 1 into 1 plus A1 and A2 है, Z into 1 into 2, कोएफिशिएंट 2 है, प्लस -1 into 1 into 3, that is -3. -1 into 1 into 3 is equal to 0. So 1 plus 2Z minus 3 is equal to 0. So 2Z के +1 है, -3 है, -2 हो जाएगा, उससे जाएगा तो +2. तो what is Z? 1. 1 आ जाएगा. Z is equal to. So here you can put 1. अब ये कैसे मिलेगा Y? ऑर्थोगोनल वाली की कंडीशन है, और स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ डायमेंशन इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ग्रुप. यहाँ ऑर्डर ऑफ ग्रुप 6 है, तो आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो. 6 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज ओके. सो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4. सो y इज इक्वल टू 2. Okay, so in this way you can find out missing one. Okay, so ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं. Now see in this character table, पहले मैंने एक बार आपको बताया था. Again see I will explain here, but before starting that, see how to decide Mulliken term. First we will check it. Mulliken term A1, A2, B1, B2 जो लिखते हैं Mulliken term, वो कैसे लिखेंगे, पहले उस पर फोकस करते हैं. See Mulliken term is very simple.
पहले आपको कैरेक्टर देखना है। कैरेक्टर अगर 1 है तो सिंबल कौन सा देंगे आप? आइदर ए और बी, दोनों में से कोई भी सिंबल आएगा। कैरेक्टर 1 है तो दो सिंबल है, सी आइदर 1 और -1 और ए और बी। कैरेक्टर 1 है तो यू कैन हैव ए सिंबल ए और बी। सवाल ये ए कब आएगा कब बी आएगा। सो 1 है तो पॉजिटिव कैरेक्टर देखना है, यहाँ 1 है तो अगर 2 है तो ये आएगा। अभी 1 है तो ये कब आएगा? तो +1 के लिए है, -1 के लिए बी। ए CN एक्सिस रोटेशन एक्सिस का कैरेक्टर देखना है। रोटेशन एक्सिस का कैरेक्टर देखना है। +1 है तो ए, -1 है तो बी, 2 है तो ई आएगा। ओके, आफ्टर दैट द नेक्स्ट इस सबस्क्रिप्ट में आप 1 और 2 लिखते हो। सबस्क्रिप्ट ये कैसे लिखेंगे? सबस्क्रिप्ट में 1 आएगा कब और कब 2 आएगा। सो उसके लिए आपको सबस्क्रिप्ट जो दिया है उसके लिए आपको सिग्मा प्लेन देखना है। जो सिग्मा प्लेन मिरर प्लेन अगर पॉजिटिव है तो प्लस लिखना है, मिरर प्लेन अगर नेगेटिव है तो 2 लिखना है। ओके, वन मोर थिंग, सिमेट्री अगर आई प्रेजेंस है आई, तो आपको आई इज देयर मीन्स कैरेक्टर 1 होगा, प्लस होगा, आई प्रेजेंस है तो तब सिंबल में यूज करेंगे हम। जो सिंबल है उसमें सबस्क्रिप्ट में आपको जी यूज करना है, जीराट। -1 है तो आपको 1 जीराट यू यूज करना है। सिमेट्री एब्सेंट है तो -1 होगा। अभी एक और चीज है सुपरस्क्रिप्ट के लिए। कई बार सुपरस्क्रिप्ट में प्राइम लिखते हैं, डबल प्राइम लिखते हैं, तो उसके लिए सुपरस्क्रिप्ट के लिए सिग्मा एच देखना है। कई बार ऐसा हो सकता है कि सिग्मा एच एंड मिरर प्लेन दोनों सेम रहेंगे। सुपरस्क्रिप्ट में अगर ये जो प्लस है सिग्मा एच, तो आपको सुपरस्क्रिप्ट में प्राइम लिखना है, ऐसे प्राइम लिखना है। एंड सपोज ए -1 है तो आपको यहाँ पे डबल प्राइम लिखना है ऐसे। अभी चलो यहाँ पे A1 लिखा है, पहले पहले कोई बताओ ए क्यों लिखा है? CN का कैरेक्टर देखो 1 है, बोलिए। +1 देखो ये दोनों सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक विथ रिस्पेक्ट टू प्रिंसिपल एक्सिस, सिमेट्रिक विथ रिस्पेक्ट टू मिरर प्लेन, दोनों प्लस है तो ये 1 आएगा। ये 1 इसलिए लिखा है ताकि यहाँ पे देखो 1 इसलिए लिखा है, सिग्मा प्लेन पॉजिटिव है तो 1, और यहाँ पे ये +1 है इसलिए ये सिंबल लिखा। अभी ये तो प्लस ही है इसलिए सिंबल ये आएगा। सिमेट्रिक विथ रिस्पेक्ट टू C2 एक्सिस ऐसे बोलते हैं इनको। इनको क्या बोलेंगे? ए सिमेट्रिक विथ रिस्पेक्ट टू सिग्मा प्लेन। देखो ये माइनस है, माइनस है तो A2 आएगा सर। 2 लिखा है यहाँ सबस्क्रिप्ट में। नाउ सी सिंबल बी क्यों आ गया? क्योंकि ई के रिस्पेक्ट में -1, -1 है सर वो सॉरी एक्सिस C2। के रिस्पेक्ट में नहीं, बी इसलिए आ गया क्योंकि एक्सिस के रिस्पेक्ट में ये -1 है, ये भी -1 है, तो सिंबल बी यूज होगा। बट ये +1 है, इसको ऐसे बोलते हैं एसिमेट्रिक विथ रिस्पेक्ट टू C2 एक्सिस बट सिमेट्रिक विथ रिस्पेक्ट टू सिग्मा प्लेन। तो ये 1 है तो सब यहाँ पे 1 आएगा। सी ये पॉजिटिव है सिग्मा प्लेन तो सबस्क्रिप्ट में 1 आएगा। बट CN एक्सिस -1 है, ये -1 तो सिंबल बी आएगा। इसी तरह दोनों -1 में है, दैट मीन्स दे आर एसिमेट्रिक with respect, or you can say this is asymmetric with respect to C2 axis as well as asymmetric with respect to sigma v plane। दोनों -1 है तो यहाँ पे सिंबल 2 लिखेंगे, B2। इसी तरह सिंबल लिखेंगे सी। बट समटाइम्स ऐसे
आपको प्रोवाइड करते हैं कि Cn यहाँ सिग्मा एच प्रोवाइड करते हैं, यहाँ आई देते हैं, और सिग्मा एच ही सब जो मिरर प्लेन है। ऐसे आपको यहाँ -1 1 -1 दे देते, तो कैसे इसका सिंबल लिखते हैं आप? सिंबल कौन सा लिखेंगे पहले, ये बताओ मूल्यांकन टर्म। सर आई होगा तो डबल नहीं, प्राइम पहले आप ये Cn -1 है तो सिंबल ये आएगा, ये बी 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 और ओके, सिग्मा ये बी आएगा पहले, बट यहाँ सिग्मा एच सी 1 है तो सर बी प्राइम 1 प्लस है। प्राइम। देखो ये प्लस है, वो प्राइम तो रहेगा ही, सिग्मा एच 1 है तो प्राइम तो रहेगा ही, बट यहाँ पे क्या लिखे वो बताइए, प्लस है सिग्मा एच। 2b2 प्राइम 2 लिखूं या 1 लिखूं? माइनस होता है मिरर प्लेन तब आप 2 लिखते हो, प्लस है तो क्या लिखते हो? ओ अच्छा सर 1 1 1 ये प्लस है तो 1 1 लिखते हो। अबे आई देखो, जिराड है या अनजिराड? सर अनजिराड अनजिराड, क्योंकि आई -1 है तो ये अनजिराड, तो इसका पूरा जो सिंबल है वो B1U प्राइम प्राइम में से आ जाएगा। मैं जब इसको वर्कशीट दूंगा आपको तो उसमें ऐसे क्वेश्चंस हो गए, आप खुद प्रैक्टिस करके लिख पाओगे। B1U -1, तो इसी तरह से आप लिख सकते हो। इसे पूरा कैरेक्टर टेबल भी कैसे कंस्ट्रक्ट हुआ होगा, कैसे फॉर्म हुआ, वो भी आप यहाँ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल से आपको C2V का कैरेक्टर टेबल लिखना है समझो, तो उसके लिए ये जो कैरेक्टर टेबल है C2V का, इसमें आप ऐसा कर दो कि चलो यहाँ आपके पास डिफरेंट सिंबल है। एग्जाम्पल ये 4 एंट्री है C2V के लिए। E है, C2 है, सिग्मा V Z है, सिग्मा V YZ है। सो अब पहले A1 A2 B1 B2 लिख दो सीक्वेंस में। चलो अभी आप कैसे कैरेक्टर टेबल लिख पाओगे? पहले A1 है, ये देखो A1 है तो ये दोनों 1 1 हो गए ऐसे। A2 है तो ये 1 या -1 हो गए, एसिमेट्रिक विथ रिस्पेक्ट टू सिग्मा V हो जाएगा। B1 है तो -1 सर। दोनों -1 आएगा या -1 + 1? तो -1 + 1 -1 + 1 रहेगा, क्योंकि बी सिंबल है इसलिए देखो यहाँ -1 रहेगा दोनों में। हाँ सर, वही बोल रहा था। ये हाँ 1 है तो ओके, दोनों में मैं वही बोल रहा था। ओके, मैं इसकी पूछ रहा हूँ B1 के लिए, और B2 के लिए दोनों -1 हो जाएंगे। अभी आपको पता है फर्स्ट की सारी एंट्री पॉजिटिव होती है तो आप 1 1 लिख दो। ओके, सेकंड के लिए क्या करोगे, इसका सभी का जो समेशन है बाकी एंट्री का वो 0 होता है, ऑर्थोगोनल होता है। तो यहाँ पे आपको यहाँ 1 लिख दो, ये 2 1 है, 2 -1 तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे -1 आ गया, अभी यहाँ तो आप -1 लिख नहीं सकते तो यहाँ -1 लिखना पड़ेगा, ताकि सबका समेशन है वो 0 होना चाहिए। 1 -1 1 -1 0 हो जाएगा। कोएफिशिएंट 1 है इसलिए मैं इनको कंसीडर नहीं करता हूँ। अदरवाइज सपोज आपको 0 समेशन चेक करना है तो उसमें साथ में कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करके चेक करना है। यहाँ 2 लगे, -1 है, यहाँ 0 लगे, तो ये भी सॉरी यहाँ सर पे 1 1 1 यहाँ 1 लगे, क्योंकि बी सिंबल है, ई नहीं है। ओके, 1 -1 तो यहाँ पे भी +1 आएगा तो ये भी 0 हो जाएगा। ऐसी तरह से सारी एंट्री इसमें आप खुद ही लिख पाओगे। C3V के केस में क्या है, देखो इसका समेशन 0 है या नहीं चेक कर लो। सबका समेशन फर्स्ट को छोड़ दो, ये 1 वाला यूनिटी, बाकी सबका समेशन 0 होगा। ये 1 1 -1 यहाँ तो 0 नहीं हो रहा, 1 1 -1 तो 1 होगा, 0 क्यों नहीं हो रहा है? क्या करना पड़ेगा 0 के लिए? ऊपर कोएफिशिएंट है उसको कंसीडर करना है। तो ई के कोएफिशिएंट 1 है तो ये 1 रहेगा। C3 के कोएफिशिएंट 2 है तो ये 2 हो जाएगा, +2 एंड 1 + 2 दैट इज 3, एंड यहाँ -1 है, -1 × 3 -3 हो जाएगा, सो ये 0 हो जाएगा। गुड। तो मूल्यांकन टर्म कैसे लिखते हैं वो यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। नाउ ये एक टॉपिक आपको करवाया था उसके बारे में अभी फिर से डिस्कस करते हैं, दैट इज कैलकुलेट
total number of mode of vibration, ये C2V का कैरेक्टर टेबल है, तो आप C2V का कोई भी एक एग्जांपल ले लो। मोड ऑफ वाइब्रेशन फॉर ब्यूटाडाइन ही लेते हैं, चलो ये नेट एग्जाम में पूछा गया है, सिस 13 ब्यूटाडाइन। C2V बिलोंग्स टू C2V पॉइंट ग्रुप, गुड। ब्यूटाडाइन के लिए हम लिखते हैं, ये कैरेक्टर टेबल आपको प्रोवाइड कर दिया है, ऐसे क्वेश्चंस था और नेट एग्जाम में ऑलरेडी पूछा गया था। तो इसमें कैसे टोटल मोड ऑफ वाइब्रेशन कैलकुलेट करेंगे वो वन बाय वन देखते हैं। सो सी ब्यूटाडाइन सिस ज्योमेट्री है, ऐसे स्ट्रक्चर आएगा। So this is your which axis? C2. This plane is called sigma v. sigma v xz mirror plane। तो इसमें दिया वही ये मिरर प्लेन वाला सेकंड वाला, एंड ये जो प्लेन है पूरा वो रहेगा सिग्मा वी वाई जेड। सो हाउ टू गेटिंग फर्स्ट इंटरेस्ट, इसके लिए आपको यहाँ एक इम्पोर्टेंट चीज लिखना है, दैट इज टोटल मोड ऑफ वाइब्रेशन कैलकुलेट करना है। टोटल मोड ऑफ वाइब्रेशन, उसके लिए 3n लिखना है, और 3n के लिए यहाँ चाहिए आपको ट्रेस। पहले ट्रेस लिखो, उसके बाद अनशिफ्ट एटम, अनचेंज एटम। दो चीजें लिखना है और इसका मल्टीप्लिकेशन करना है। पहले कौन सी चीज लिखना है? ट्रेस। ट्रेस कैसे लिखेंगे? जिसमें सम ऑफ कैरेक्टर्स x having x y z। यस, ट्रांसलेशन कंपोनेंट जिसमें है एक्स वाई जेड, उसका जो कैरेक्टर है उनका सम करो। यहाँ जेड है, यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे वाई है, तो इन तीनों का कैरेक्टर जो है उनका आप समेशन करो। यहाँ पे 1 है, 1, यहाँ पे भी 1, सो इट्स 3। 1 -1 -1 that is -1, 1 1 -1 that is 1, 1 -1 1 that is 1. This is the trace. नेक्स्ट अनशिफ्ट एटम लिखना है आपको। यहाँ टोटल एटम कितने हैं? 4 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, तो टोटल एटम 10 है। आप ई ऑपरेशन करते हो तो कितने एटम अनशिफ्ट रहेंगे? सर कौन सा ऑपरेशन? ई ऑपरेशन फर्स्ट वाला आइडेंटिटी। सभी मतलब 10 एटम टोटल मोड्स जो है यहाँ पे वो 3n के हिसाब से 10 एटम है तो 30 मोड आएंगे। You know very well, so see all these 10 atom remains unshipped. Yes, बोलिए। ट्रेस में -1 1 1 कैसे आया, और एक बार रिपीट कीजिए ना। रिपीट करते हैं, चलो। इस केस में आपको क्या करना है, सी जो ई वाली कॉलम है उसमें ई वाले का समेशन करना है, C2 वाली कॉलम में C2 के जितने कैरेक्टर है उसका समेशन करना है, और सिग्मा वी एक्स जेड है तो उसमें सिग्मा वी एक्स जेड वाली कॉलम है उसका समेशन करना है। अभी आपको ये देखना है, सी एक्स वाई जेड है, वहां से ट्रेस लिखते हो कि एक्स वाई जेड है उसका कैरेक्टर। तो यहाँ पे सी जेड कौन से रिप्रेजेंटेशन में है? A1 में। A1 A2 में कुछ है एक्स वाई जेड? A2 में यहाँ कुछ लिखा है? नो सर। आर जेड है बट एक्स वाई जेड नहीं है। एक्स कहाँ पे है? B1 में है, और वाई B2 में।
तो ये 3 इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है, उसको आपको कंसीडर करना है और उसके जो कैरेक्टर है उसका समेशन करना है। इनके जो कैरेक्टर है चलो बताओ, ई में A1 का कैरेक्टर क्या है, पहले ई के लिए लिखते हैं। A1 का कैरेक्टर 1 B1 का 1 B2 का 1 कितना होगा समेशन, 3 इसलिए 3 लिखा है। C2 के लिए चलो A1 का कैरेक्टर 1 B1 -1 B2 तो -1 लिखेंगे। तो समेशन कितना होगा टोटल, ओ अच्छा अच्छा -1 होगा ना, +1 -1 0 ये -1 रहेगा। यहाँ पे ओके। चलो 2 + 1 1 -1 है तो +1। 1 हाँ यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन नहीं है, समेशन, ओके तो 1 आएगा। 1 होगा ओके। ओके, अनशिफ्ट Thank एटम ई ऑपरेशन करते हो सो ऑल द एटम रिमेन्स अनशिफ्ट, ऑल द 10 एटम्स। व्हाट्स अबाउट C2 ऑपरेशन, कितने सर एटम अनशिफ्ट रहेंगे, 0। 0, क्योंकि यहाँ ऐसे घुमाओगे तो 5 एटम इस साइड से लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड आ जाएंगे, राइट हैंड साइड वाले है वो लेफ्ट हैंड साइड चले जाएंगे, सो अनशिफ्ट एटम रिमेन्स 0। व्हाट्स उसमें अबाउट भी सिग्मा V 5Z मिरर प्लेन, इसमें भी 0 है, सब इस साइड आ जाएगा, ये सब उस साइड चले जाएंगे तो 0 रिमेन्स अनशिफ्ट। व्हाट्स यहाँ पे अबाउट सिग्मा V YZ, यहाँ पे सर 4 6 तो 10। ऑल आर इन द प्लेन ऑफ लैपटॉप, ये सारे एक ही प्लेन में नहीं है। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, SP2 सर। हाँ। तो ये ट्रायंगल हो गया ना, पूरा एक प्लेन में रहेगा, इस प्लेन में है, ऑल 10 रिमेन्स अनशिफ्ट। अब जैसे वाटर मॉलिक्यूल ड्रॉ करते थे ना, H1 and H2 remains in the same plane, ओके इसी तरह। चलो कितना होगा मल्टीप्लिकेशन, 10 × 3 30। 30। बाद में बाकी जो 2 है रो उसमें तो 0 है तो वो लिखने की जरूरत नहीं है, तो 0 हो जाएगा। लास्ट कॉलम में 10 आएगा, तो यहाँ पे 10 × 3 दैट इज 30, ये 0 हो जाएगा। ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, ये दोनों का 1 × 10 दैट इज 10, तो आपको 3n वैल्यू मिल जाएगी। अभी नंबर ऑफ टाइम्स काउंट करना है, नंबर ऑफ टाइम्स A1, number of times A2, number of times B1 in a reducible reduction formula, number of times B2, इसको कैलकुलेट करना है। एक कैलकुलेशन के लिए एक फॉर्मूला है, रिडक्शन फॉर्मूला जिसको बोलते हैं, नंबर ऑफ टाइम्स ith representation is equal to 1/h order of group into sum of n multiply with character of reducible 50 R into character of J, ऐसे a reduction formula where H is equal to order of group, H n is coefficient एंड बाकी जो 2 है वो अलग अलग कैरेक्टर है I और J का। So you tell me, see what happens in this case, नंबर ऑफ टाइम्स A1 काउंट करना है तो आप कौन कौन सी चीजें ध्यान में रखोगे, पहले तो ऑर्डर ऑफ ग्रुप बताओ, H कितना है, इन दिस केस H इज इक्वल टू कितना, यहाँ पे कोएफिशिएंट का समेशन या तो स्क्वायर करोगे, 1² + 1² + 1² + 1², तो H कितना आएगा, ऑर्डर ऑफ ग्रुप 4। ऑर्डर ऑफ ग्रुप इज 4, तो आपको सभी जो है उनको 4 से डिवाइड करना है। अब आप A1 कैलकुलेट कर रहे हो तो यहाँ 3 चीजें साथ में रखना है, एक 3n A1, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, 3 नंबर ऑफ टाइम्स A1, तो ये इसको लेना है ध्यान में, A1 की सारी एंट्री ध्यान में लगे और इनके कोएफिशिएंट, तो यहाँ पे 30 है, सी पहली एंट्री जो है वो 30 है, इंटू यहाँ A1 की एंट्री 1 है, इंटू कोएफिशिएंट भी 1 है। बाद में क्या करना है, समेशन, यहाँ सिग्मा लिखा है दैट इज समेशन,
नेक्स्ट AC2 वाली एंट्री है, कोई AC2 एंट्री, ये एंट्री यहाँ 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ कोएफिशिएंट भी 1 है, सो 0 × 1 × 1 प्लस सिग्मा बी एक्स जेड के लिए यहाँ 0 है, यहाँ 1 और 1 है, सो 0 × 1 × 1 प्लस 1, यहाँ 10 है, 10 × यहाँ 1 × 1। ये समझ में आ गया? यस और नो? यस सर। यस सर। यस। ओके, चलो कितना होता है? 30 होगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0, यहाँ 10, सो 10 + 30 दैट इज 40, 40 डिवाइड बाय 4, 10। तो 10 टाइम्स A1 ऐसे आप लिखोगे। अभी A2 कैलकुलेट करना है, तो अब A1 को छोड़ दो, बाकी सब सेम रहेगा, A2 लेना है A1 की जगह, सो यहाँ 30, ये जो 30 है वो, तो इसके बाद A2 का कैरेक्टर यहाँ 1 है, उसको ध्यान में लो, इंटू कोएफिशिएंट 1 है, बाकी जो दो एंट्री है वो 0 आ जाएगी, 0 × 1 × 1 प्लस 0 × -1 × 1 प्लस लास्ट एंट्री 10 × -1 × 1, कितना होगा ये? 30 - 10 दैट इज 20, 20 डिवाइड बाय 4, 5। 5A2। चलो इसी तरह B1 कैलकुलेट करना है, तो 30 × 1 × 1 दैट इज 30, बाकी दो एंट्री है वो 0 है, इसलिए डायरेक्टली 0 लिख देता हूँ। Then 10 × -1 × 1 that is -10, कितना आंसर आएगा? 5B1। B1। चलो B2 के लिए 30 × 1 × 1 that is 30, ये दोनों 0 है, सर 10B2। प्लस 10 × 1 × 1 good that is 10, so it's a 10B2. So this is nothing but total mode of vibration. ये जो आपने कैलकुलेट किया 10 + 5 + 5 + 10 टोटल 30 हो जाएंगे। This is called total mode of vibration. इसमें 3 चीज आ जाएगी टोटल में, रोटेशनल, ट्रांसलेशनल एंड वाइब्रेशनल। सर ये- वाइब्रेशन 24। A2 5B1 गुड 10B2। अभी टोटल मोड ऑफ वाइब्रेशन है, उसमें आपको पता है क्या क्या चीज आ जाएगी टोटल मोड ऑफ वाइब्रेशन में? टोटल ट्रांसलेशनल मोड ऑफ डिग्री ऑफ वाइब्रेशन रिप्रेजेंट वाइब्रेशनल मोड, ट्रांसलेशनल रोटेशनल मोड एंड ट्रांसलेशनल। ट्रांसलेशन मोड। आपको कैलकुलेट करना है वाइब्रेशन, तो उसमें आप टोटल जो मोड है उसमें से रोटेशनल माइनस कर दो एंड ट्रांसलेशन माइनस कर दो। कैसे रोटेशनल मिलेगा? रोटेशनल के लिए क्या करोगे? RX RY RZ है, वो वाला एंट्री लिख दो। RX RY RZ किस में है? A2 में है, B1 में है एंड B2 में। A2 B1 एंड B2। ओके, सीधी एंट्री डायरेक्ट लिख देना, इसमें कोई कैलकुलेशन कुछ नहीं करना है। जिसमें RX RY RZ कंपोनेंट लिखे हैं तो दे आर रोटेशनल मोड ऑफ वाइब्रेशन, ये आप चूज कर लो। ट्रांसलेशन के लिए कौन सा कंपोनेंट देखोगे? XYZ। वही लिखवाओ, चलो RX RY RZ। ट्रेस के लिए हम समेशन करते थे, यहाँ ये कुछ नहीं करना है, यहाँ सिर्फ XYZ किस में है, और जिसमें भी XYZ है उनका मोड है वो A1 B1 और B2। उनको कंसिडर करो। या एक तो A1 रहेगा, दूसरा यहाँ पे है और यहाँ पे, तो इट्स A1 B1 B2। तो आपका टोटल मोड ऑफ वाइब्रेशन जो था वो 10A1 + 5A2 + 5B1 + 10B2
तो अभी आपको वाइब्रेशनल मोड सपोज कैलकुलेट करना है, तो टोटल मोड माइनस रोटेशनल दैट इज A2 B1 B2 माइनस ट्रांसलेशन दैट इज, ये सब माइनस कर दो, कितना बाकी रहेगा? 10 में से A1 एक निकल जाएगा तो 9A1, 9A1 5A2 है उसमें से एक FiA2 है, रहेगी एक भी नहीं, 5B1 है उसमें से 2B1 निकल जाएगी। सी so 3B1, व्हाट्स अबाउट B2? 10B2 है हमारे पास, उसमें से 2 निकल जाएंगे तो 8B, 5A2 एक माइनस होने से सर 4A2 होना चाहिए ना। 4A2 हो जाएगा, जैसे -1 हो जाएगा, ये 4 रहेगा। अभी ये 4 भी निकल देंगे हम, क्वेश्चन में पूछा है उस हिसाब से ये 4 भी निकाल देंगे। अभी वाइब्रेशनल मोड विचार IR एक्टिव, IR एक्टिव काउंट करना है। इसे IR एक्टिविटी कैसे मिलेगी? XYZ कंपोनेंट है वही IR एक्टिव है। A2 में XYZ है? नो सर, नहीं है, एक में है। A2 वाला निकाल देंगे। सो सी IR एक्टिव मोड ऑफ वाइब्रेशन, वाइब्रेशनल मोड विच आर IR एक्टिव, उसमें XYZ वाले A1 B1 एंड B2 आएगा। A2 इज इनएक्टिव, A2 इज IR इनएक्टिव। तो इसको निकाल देंगे, so answer become 9A1 plus 3B1 plus 8B2। चलो इसमें कोई डाउट नहीं ना? कैलकुलेट करना है तो आप कर सकते हो। एक और एग्जांपल है, C3V पॉइंट ग्रुप का एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल यू आर आस्किंग टू कैलकुलेट मोड ऑफ वाइब्रेशन फॉर C3 मॉलिक्यूल बिलोंग्स टू C3V पॉइंट ग्रुप। यहाँ पे से आप ऐसे लिख सकते हो, समरी हो, यहाँ लिखा नहीं है बट आप लिख सकते हो कि IR एक्टिव एंड रामन एक्टिव। अब आपका A1 मोड है, वो कैसा मोड है? A1 मोड सर IR एक्टिव। IR एक्टिव है सी, बट रामन इनएक्टिव है। सो A1 मोड इज IR एक्टिव, रामन एक्टिव भी है। B1 A2 सर रमन एक्टिव तो नहीं होगा ना सर? A1 सर एक्टिव है रामन A1, हाँ। एक्टिव नहीं है, रामन एक्टिव नहीं है सर, रामन इनएक्टिव। और आपका A2 है वो रमन एक्टिव है सर, IR इनएक्टिव। व्हाट्स अबाउट B1 एंड B2? बोथ एक्टिव सब सर। बोथ आर एक्टिव। तो जो बोथ एक्टिव है ना, उनको कोइंसिडेंट भी बोलते हैं। कोइंसिडेंस मोड ऑफ वाइब्रेशन, दोनों एक्टिव है। See, same question you are asking for C3V point group. Question is just like that. Calculate number of IR active mode of vibration for ammonia molecule belongs to C3V point group. So ammonia C3V point group है। कितने एटम है? 4। तो पहले मेरे को आप लिखवाओ, यहाँ ट्रेस लिखवाओ। ट्रेस कैसे आएगा?
एक्स वाई जेड वाला है उसका समेशन कर दो। नहीं 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 सर। प्रेस एक्स वाई जेड किस में है? यहाँ पे ये जेड है, यहाँ एक्स वाई है सी, यहाँ कुछ नहीं है, तो ये दोनों का समेशन A1 और E का समेशन, A1 का कैरेक्टर 1 है, यहाँ पे 2 है, सो 1 + 2 3 1 - 1 0 1 - 1 0 1 0। 1 लॉन्ग शिफ्ट एटम लिखो। अगर आप ई ऑपरेशन करते हो तो ये 4 एटम्स है, 4 एटम क्या रहेंगे ई ऑपरेशन में? डेट सर 12 होगा। व्हाट्स अबाउट C3? C3 करेंगे तो सर तीनों ही चेंज होंगे, तो फिर और नाइट्रोजन के अलावा एक 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 कंसेप्ट रहेगा, क्योंकि एक्सिस नाइट्रोजन में से पास होती है। हाइड्रोजन तो चेंज होगा क्योंकि ये पिरामिडल शेप है, तीनों हाइड्रोजन जो है वो 120 एंगल पे है। सिग्मा वी, कोई भी सिग्मा वी आप लेके, सी यानी सिग्मा वी, तीनों सिग्मा तो वी दो सेम है। है, इसलिए इसको सेम क्लास में रखा है। 2 सर। तो एटम कंसेप्ट रहे, बाकी सब चेंज हो गए। तो 4 × 3 12 0 2 × 1 दैट इज 2। इस हिसाब से आपको नंबर ऑफ टाइम्स A1 कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ टाइम्स A2 एंड नंबर ऑफ टाइम्स E। ग्रुप नंबर कितना है, ऑर्डर ऑफ ग्रुप? 1 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर ऐसे भी काउंट कर सकते हो ना, इसका कोएफिशिएंट 1 14 है 2 14 है 3 है, 1 + 2 + 3 दैट इज 6। ओके ओके चलो 12 × 1 × 1 दैट इज 12। इसके बाद 0 है तो लिखने की जरूरत नहीं। 2 × 1 × 3 दैट इज 6। 18 divided by 6, so 3A1. Okay, what's about A2? 12 × 1 × 1 that is 12। ये 0 है सेकंड एंट्री, और ये -1 है, सो 2 × -1 × 3 that is -6। 6/6 what's about E? 12 × 2 × 1 that is 24। ये 0 है, ये 2 × 0 so again 0, 24/6। तो कितना आएगा टोटल मोड? 3A1 + A2 + 6E। now tell me vibrational mode। चलो इसमें पहले माइनस करो ट्रांसलेशन मोड। ट्रांसलेशन मोड कौन कौन से है? ट्रांसलेशन मोड A1 और E। A1 और E है, क्योंकि उसमें Z and XY आते हैं, सो A1 is 1A1 - 1E। रोटेशनल मोड A2E। ये दोनों रोटेशनल है, ये दोनों ट्रांसलेशन है। तो कितना आंसर आएगा? 3A1 में से A1 निकल जाएगा तो 2A1। A2 है, उसमें से एक A2 निकल जाएगा तो 0 हो जाएगा। 6E में से एक ही चला जाएगा, 2E रिमूव हो गए तो 40। So total mode of vibration which are higher active A1 and E. Okay, so this similar way you can see, try it for this tetrahedral molecule with a point group, with molecule which belongs to tetrahedral point group. You can try it for methane molecule. Calculate number of modes of vibration which are higher active for methane belongs to tetrahedral point group. ओके CH4 है, उसका शेप जो है वो टेट्राहेड्रल है, सो मीथेन मॉलिक्यूल बिलोंग्स टू टेट्राहेड्रल पॉइंट ग्रुप। आप ट्राई करोगे ना मीथेन के लिए? सो इसी तरह से C2 का जो आपने प्रैक्टिस किया है, उसी तरह ये मीथेन मॉलिक्यूल्स है, तो उसके लिए भी आप कैलकुलेट कर सकते हो।
So this character table for tetrahedral point group is provided to you. You can calculate the mode of vibration for methane molecule. Okay. So otherwise, you can try by yourself. If it is not done, then we will check it tomorrow in the morning. So thank you very much for joining in this lecture. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you, sir.